Hello everyone. So as you can see today video we are going to discuss about Vedic maths. Now these are the methods which are developed by our Rishi Munis in our Vedas. So but there are very useful method and we can learn faster calculation method and we can save a lot of time. Some student may question that, sir, there is a calculator allowed in CAT, so what is the use? But you need to learn that you are not going to appear only in CAT, you are going to appear in other exam as well, right? So in CAT, yeah, definitely there is a CAT calculator allowed, but in other exam calculator is not allowed. Besides that, in CAT also there is no keypad is available. So everything you have to type through mouse, which takes a lot of time. If you know these method, definitely your confidence level will be boost up and you can save a lot of time. So I'll definitely suggest in spite of calculator is available, you should learn these methods. We have already taken certain classes, so I'm not going to repeat those methods. If you have not seen those classes, definitely you should look for that on YouTube channel as well. So I'm going to teach new things in today's class. We have already learned how to calculate squares and all. So today I'm going to teach those methods in which we can multiply those numbers, और इनका हम यूज भी देखेंगे, हाउ टू यूज दीज कैलकुलेशन इनटू आवर डे टू डे कैलकुलेशन, और कैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं किसमें जरूरत पड़ेगी. जैसे इफ somebody asks you what is 96% of 108, now I'm sure most of you cannot do it easily. Besides multiplication, there is no other way you can calculate this. But in today's class, we'll learn how to simplify these kind of multiplication, or like this, 10.9% of 8.8. Now, even in decimal, you can use this kind of calculation very fast. So let's begin the session. But for that, you need to remember the tables till 20, as I normally suggest. अगर आपको टेबल याद होंगी तो डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा. टेबल टिल 20 into 10, नॉट 20 into 20. अगर आपको 20 into 9, 20 into 10 तक भी याद है, 18 into 9, 17 into 6, इट्स मोर देन एनफ. तो शुरू करते हैं एंड देन विल सी कि इस तरह के नंबर अगर आ रहे हैं हमारे पास कैलकुलेशन के लिए तो हम उनको कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सिंपल सा रूल है, हम ये वाली चीज़ ऑलरेडी सीख चुके हैं इससे पहले. वी हैव ऑलरेडी लर्न द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स which are in the range of 75 to 100, 100 to 125, 25 to 50, and 50 to 75. So we have already learned the squares as well as multiplication of these numbers. Like if you need to multiply 91 into 97, I have told the method in which you can do it orally without even using pen. I'll do this calculation like 9 into 3, 27, and 91 minus 3 is 88. I'll write my answer like this, 8827, and I'm sure 90% of you cannot calculate this question that fast. तो ये सारे मेथड अगर आपने नहीं देखे तो एक बार डेफिनेटली देख लेना. मैं इस पर दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ. इवन 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं जो नंबर 100 के पास है और सेम पैरिटी में है. लाइक इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 107 into 112, and if you ask me what is the multiplication, I'll write my answer like this. कैलकुलेटर से भी इतना फास्ट थोड़ी ना कर लोगे यार, सोच के देखो. वहां पे तो 107 पहले टाइप करने जाओगे, फिर 112 माउस से लेके जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे. लेकिन अगर ये सब मेथड आते हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. और जैसे मैंने बोला, मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है. ऐसे तो बहुत क्वेश्चन देखे होंगे ना, ऐसी कैलकुलेशन तो बहुत जगह काम आएंगी. लेकिन अब ये चीज और ये चीज अलग है या सेम है? दिस इज एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम. यू हैव टू जस्ट पुट द डेसिमल. व्हाट इज 10.7% of 11.2? There are two decimal here and two decimal because of 100, so my answer will be shifted by 4 places. कैलकुलेटर से करके देख लो, इतना ही आएगा, 1.1984. 10.7% of 11.2, you can write it like this. तो अगर आपको इसकी मतलब समझ में आ रहा है, इसका यूज समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है. अदरवाइज फिर वही करते रहना जैसे बचपन से करते हुए आए हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना बैठ के, क्योंकि उसी में तुम्हारा आदत है, कॉन्फिडेंस उसी में आता है. ये सब चीज़ें आप क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करती इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, प्रैक्टिस से आएगा. तो अदरवाइज जिसको आगे ही करना उसके लिए ये टाइम सेविंग इवेंट होते हैं और डेफिनेटली बहुत फायदा करने वाले हैं. तो ये
भी चलो बता देता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मान लो इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, तो ये नंबर में दोनों प्लस वाले क्वेश्चन, ये कितना ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है 100 से, हम 100 बेस ले रहे हैं। तो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर दैट विल बी 7 इंटू 12 84, और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसको ऐड कर देना, 107 में 12 तो भी 119 आएगा, इसको इसमें ऐड करोगे तब भी 119 आएगा। तो ये आंसर हमारा डायरेक्ट आ जाता है 11984। और ये सब चीजें आप दिमाग में कर सकते हो। 7 इंटू 12 इज 84, 107 प्लस 12 119। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज 113 इंटू 107, तो आप 12091 ऐसे आंसर बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो 13 इंटू 7 इज नथिंग, इट इज 91, इसको ऐड करो तब भी 120, इसको ऐड करो तब भी 120। राइट हैंड साइड पे दो ही डिजिट लिखनी है। अगर 3 आ जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर देना, 1 आ जाए तो 0 लगा देना। लाइक अगर मुझे 108 इंटू 102 करना है और 101 करना है, तो यहाँ पे ये +8 और +1 है, तो जब 8 इंटू 1 करोगे तो 8 आएगा, लेकिन आप सिंगल डिजिट नहीं छोड़ सकते, तो आपको 08 लिखना पड़ेगा। इसको ऐड कर देना 109, या इसको ऐड कर देना 10, तो 10908 विल बी द आंसर। तो दोनों अगर प्लस के हैं तो डेफिनेटली बहुत आसान है कैलकुलेट करना, और अगर दोनों माइनस के हैं तब भी दोनों को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। लाइक 94 इंटू 96 इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, तो कितना कम है 6, ये कितना कम है 4, इसमें माइनस हो रहा है, तो 6 इंटू 4 इज 24, subtract this or subtract this, you will get 90. Right hand side again there should be 2 digit. If somebody asks you what is 88 into, बढ़ा भी जा सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन, अगर आपको टेबल आती है तो, that is 12, that is 11, 12 into 11 is 120 plus 12, 132, और 110 plus 22, 132. Subtract this or subtract this, you will get 77. But one right hand side पे दो ही डिजिट लिखनी है, तो 1 को आगे भेज देना, 783. 88 into 89 भी you can do it like this also guys. तो अगर दोनों प्लस हैं और दोनों माइनस हैं तो आसान हो जाते हैं कैलकुलेशन। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें नोटिस करो क्या हो रहा है। इसमें बिकॉज वन नंबर इज लेस देन 100 एंड वन नंबर इज मोर देन 100, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है वो सीख रहे हैं आज। लेट्स से नाउ you want to multiply those numbers in which one number is less than 100 and other number is more than 100. Let's say I want to multiply 96 into 106. So this number is how much less than 100? That is 4 less than 100. This number is how much more than 100? That is 6 more than 100. So if you multiply these two numbers, 4 into 6, that will be 24. But here is the catch. Here, because one number is negative and the other number is positive, so when you are multiplying these two numbers, this is not coming out to be positive, this is coming out to be negative 24. So this is not positive, this is negative 24. Now whether you add this or whether you subtract this, you will get 102. 96 plus 6 also you will get 102. 906 minus 4 is also 102. So after reaching to this stage, बिकॉज लास्ट टाइम वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर आता है। यहाँ पे क्योंकि हमारा नंबर नेगेटिव आया है, इसलिए आपको एक स्टेप और करना है। वो स्टेप क्या होगा, आप इस नेगेटिव नंबर को 100 इससे जस्ट बड़े 100 के मल्टीपल में से माइनस करो। इससे जस्ट बड़ा 100 का मल्टीपल इज 100 ओनली, तो अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो 76 आएगा। अब वो 100 हमने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लिया है, वो 100 कहाँ से आ गया हमारे पास, जादू से तो नहीं आ गया, वो 100 हमने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लिया है बेसिकली। तो आप यहाँ से कम भी करना, तो जो आपका एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 10176। आप अगर और डिटेल में जाके समझना चाहते हो तो ये जो नंबर है ना वो पॉजिटिव है। वो नंबर क्या है, वो है 10200। 102 100 दैट इज माई पॉजिटिव नंबर, और उसमें से हम 24 माइनस कर रहे हैं कायदे से। तो जब आप इसमें से 24 माइनस कर रहे हो तो 76 बचेगा, और यहाँ से क्योंकि आपने कैरी फॉरवर्ड दे दिया इसलिए आपका एक कम हो जाएगा। ये लॉजिक होता है, इस नंबर में से इसको माइनस कर रहे हो बेसिकली। तो ये लिखने की बजाय हमने क्या सीख लिया, हमने सीखा कि इसको हम 100 के मल्टीपल में से माइनस कर देंगे और यहाँ से कम कर देंगे। हम क्यों लिखेंगे इतना बड़ा स्टेप, राइट? जैसे इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई 91 into 108, 91 is how much less than 100? That is 9 less than 100. That is 8 more than 100. When we multiply 9 into 8, that is 72, but that is negative 70. इसको ऐड करोगे तब भी 99 आएगा, इसको माइनस करोगे तब भी 99 ही आएगा। बट जैसे मैंने बोला आप इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते, आपको इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा 28, और यहाँ से कम कर देना, यहाँ पे आ जाएगा 9828।
तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9828. नाउ दिस बिकम्स वेरी सिंपल गाइस. आई एम श्योर बिना कैलकुलेटर के आप इतना फास्ट तो नहीं कर सकते हो. 9828, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका कैलकुलेटर से भी तेज आ जाएगा. अगर आप मेरे से पूछोगे आंसर तो आई विल डू इट इन द माइंड एंड आई विल राइट द आंसर. लेट्स इफ समबडी आस्क मी सर व्हाट इज 193 इनटू कुछ भी 109 मेरे को मल्टीप्लाई करना. तो व्हाट आई विल डू 7 into 9 63, बट दैट 63 इज नेगेटिव, तो आई विल राइट 37. ऑलरेडी 100 में से माइनस करके लिख दो. 109 में से जब 7 माइनस किया होगा तो 102 आया होगा, बट मैंने एक कैरी फॉरवर्ड दे दिया तो मेरा आंसर 101 आएगा. अब आप ये आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, सोच के देखो. 10137 इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कभी आपने इतना फास्ट तो नहीं किया हो. तो ये सब प्रैक्टिस से आएंगे. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे 10 एग्जाम्पल लोगे तो आप भी सीख सकते हो ये वाली चीज. अब इसमें ये चीज याद रखना कि ये तो चलो सर आपने बता दिया कि 100 में से माइनस करना, या कैसे आया ये देख लेते हैं एक बार, जिनको नहीं आया समझ में ओरली करने में. इस तरह से आया, दैट इज 7 लेस देन 100, दैट इज 9 मोर देन 100, दैट 7 into 9 is 63, बट 63 इज नेगेटिव. इसको इसमें ऐड करोगे 102 आएगा, इसमें से माइनस करोगे 102 आएगा, बट बिकॉज दिस इज नेगेटिव so I'll write it 100 minus 63 which is 37, and because we have given one carry forward so I'll subtract 1 from here, so my answer will be 10137. That is the process. Now even if this multiplication comes out to be more than 100, let's say I want to multiply 88 into 111, let's say this is how much less than 100, that is 12 less than 100. This is 11 more than 100. If you multiply these two numbers, you will get 132. But that 132 is negative. This multiplication also you should do it orally, like break kar liya karo. 12 into 10, 120. 12 into 1 is 12. 120 plus 12 is 132. Or ulta, 11 into 10 is 110 plus 22, 132. Either add this or subtract this, you will get 99. Either add this or subtract this, you will get 99. तो यहाँ पे 99 आ गया. 132 is negative. तो I'll subtract it from 100, which is 68. एंड यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा 98. 9868 इज माई आंसर. 9868. क्लियर है ये पार्ट? तो अगर यहाँ पे नंबर बड़ा भी है, सॉरी ये आप 200 में से माइनस करो, आई मिस्टेक, तो यहाँ पे आप 97 लिखो, क्योंकि ये हमने अब 100 में से तो माइनस नहीं किया होगा. हमने इसको जो माइनस किया होगा वो 200 में से माइनस किया होगा गाइस. तो आपको यहाँ से क्या कम करना पड़ेगा, आपको यहाँ से 2 कम करना पड़ेगा. 9768. मैं दूसरा एग्जांपल लेके बता. 88 into, let's say I want to multiply 113, let's say that is 12, that is 13. 12 into 13 होता है आपका 120 plus 13, that is 156, which is negative. इसको इसमें ऐड करो 95 आएगा, इसको इसमें से माइनस करोगे 95, जो भी इजी लगे. इसको इसमें ऐड करोगे तो 101 आएगा. तो ये 101 आ गया, ये 156 आ गया. अब इसको आपको माइनस किसमें से करना है, 200 में से. इससे जस्ट बड़े 100 के मल्टीपल में से माइनस करना. इससे बड़ा 100 का मल्टीपल कौन सा है, 200. तो आई विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 200, आई विल गेट 44. क्योंकि मैंने 200 कैरी फॉरवर्ड लिया इसलिए 2 यहाँ से कम कर देंगे. तो जितना भी आप 100 कैरी फॉरवर्ड लोगे उतने यहाँ से कम कर देंगे. तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9944. और देते हैं एग्जाम्पल. लेट्स आई वांट टू मल्टीप्लाई 117 into 91. और बड़ा लेंगे, चलो इसके बाद और बड़ा ले लेंगे. दैट इज 17 मोर देन 100, दैट इज 9 लेस देन 100. 17 into 9 is 153. ये टेबल याद कर लोगे तो बहुत आसानी है. अदरवाइज 17 into 10 170 minus 17 153 ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसमें से 9 माइनस कर दो तो 108 आ जाता है. इसमें से 9 माइनस कर दूंगा तो 108 आ जाएगा, या इसमें ऐड करोगे 108 आ जाएगा. 200 में से इसको माइनस कर देना, 47 और 2 कम कर देना. तो आपका जो आंसर होगा 10647. यहाँ पे आपका 200 से बड़ा भी आ सकता है, 300 से बड़ा भी आ सकता है, कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर मैं आपको बोलूंगा लेट्स से यू हैव टू मल्टीप्लाई 119 into 87, कुछ भी ले लिया करो. मतलब अगर आपका कैलकुलेशन सही है कुछ भी ले लिया करो. दिस इज 19 मोर देन 100, दैट इज 13 लेस देन 100. अब आपको 13 into 19 नहीं आता ना, तो आप 13 into 20 कर लिया करो. 260, उसमें से एक 13 कम कर दो तो 247 आ जाएगा. 247 इज नेगेटिव, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, दैट इज नेगेटिव. इसमें से माइनस करना आसान है, 106. अब इससे बड़ा 100 का मल्टीपल कौन सा है, 300, क्योंकि 200 से बड़ा है. तो मैं 300 में से माइनस करूंगा, 53 बचेगा.
और यहाँ पे 3 कम कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 10353। दैट वे यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर। गाइस आप नॉर्मल पेन से भी करके देखो इसको, नॉर्मल मल्टीप्लाई, उससे डेफिनेटली आप तेजी से निकाल सकते हो। 10 एग्जाम्पल लेने हैं आपको अपनी साइड से और कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने बोला था इसका यूज कैसे पूछेगा वो आपसे, तो यूज केस में डेफिनेटली परसेंटेज के केस में यूज आएगा, इंक्रीज डिक्रीज के केस में केस आएगा। लेट्स से अगर कोई बोल रहा है कि इनिशियल प्राइस was 100, now first it was increased by 13% and then decreased by 9%. Let's say what is the final price? So do you know what you have to do? You have to just multiply these two number guys, क्योंकि 100 रुपीज की चीज पे अगर आप 13% इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली इट बिकम्स 113। अब उस 113 का 9% कम हो गया, अगर 113 का 9% कम हो गया तो कितना बचा, वो बचा 91%। 113 का 9% कम हो गया तो बचा कितना, 91%। तो बेसिकली मुझे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना आता है जल्दी से। दैट इज +13, दैट इज -9, 13 इंटू 9 इज 117, दैट इज नेगेटिव। इसमें से माइनस करोगे 104 आएगा, 200 में से माइनस कर देना और 2 कम कर देना। 10283 आ गया और 2 डेसिमल भी है क्योंकि 200 है, तो आपका जो फाइनल वैल्यू बचेगा वो बचेगा 102.83। दैट इज द फाइनल प्राइस। अब आपको इसका यूज केस भी समझ में आ गया होगा कि हमें यूज कहाँ पे करना है। अगर एक डिक्रीज है एक इंक्रीज है, आप इस तरह की कैलकुलेशन में हर जगह ये चीज यूज कर सकते हो। जितनी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। तो जो मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था वो भी एक बार चेक कर लो। जैसे मैंने आपको शुरू में पूछा था व्हाट इज 11.2% ऑफ 9.3 लेट्स। तो अभी आप इसमें डेसिमल भूल जाया करो, ये डेसिमल और ये परसेंटेज भूल जाओ। आपको मल्टीप्लाई करना है 112 को 93 के साथ। कितना ज़्यादा है, +12, ये कितना कम है, 7। 12 इंटू 7 84। कैसा 84, नेगेटिव। इसको इसमें तो माइनस करूंगा 105 आएगा, 100 में से कम कर दूंगा 16 बचेगा और 104 आ जाएगा। ये मेरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब मुझे डेसिमल देखना है कि कितने डेसिमल शिफ्ट होंगे, 1 डेसिमल, 2 डेसिमल एंड 2 डेसिमल बिकॉज ऑफ दिस 100। तो मेरा जो आंसर होगा वो 4 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और मैं बोलूंगा कि 11.2% ऑफ 9.3 विल बी 1.0416। दैट इज द आंसर। आ रही बात समझ में? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जैसे मैंने बोला उतना ही आपको आएगा आंसर। तो आई एम होपिंग कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे और आप उतनी जल्दी आंसर निकाल पाओगे जितनी जल्दी चाहिए। 87% ऑफ 11.4। तो अभी डेसिमल को भूल जाओ और इस परसेंटेज को भूल जाओ, मल्टीप्लाई कर लो 87 और 114 को। दैट इज -13, दैट इज +14। 13 इंटू 14 इज 182, 182 is -182. So I'll add this, then also I'll get 101. I'll subtract that, then also I'll get 101. But because this number is more than 100, so I'll subtract it from 200. I'll get 18. And because we have subtracted, we have taken 2 as a carry forward, so 2 will be reduced. I'll get 9918. Now look at the decimal. Decimal is 1 and 2 decimal because of 100. So my answer will be shifted by 3 decimal places. And my answer is 9.918. 87% of 11.4, it is 9.918. आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, वेरीफाई कर सकते हो whether you getting correct answer or not. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने एंड पे ले सकते हो और ऐसी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आई होप ये सेशन में आपने जितनी भी चीज़ें करी हैं समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं तो आप एक बार दोबारा से देखो और खूब सारे प्रैक्टिस अपने एंड पे लेके देखो। तो ऐसे मैं बहुत सारे सेशन लाने वाला हूँ और भी ये छोटे छोटे सेशन, एक एक ट्रिक सीखते जाओ और आपके ये काम आती जाएंगी, क्योंकि एक दिन में अगर मैं सारी ट्रिक सिखा दूंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा सीख। तो ऐसे सेशन को लाइक कर देना इसके बाद, वीडियो देखने के बाद। और ये जो हमारा ऑफर चल रहा है इसको देख लो एक बार। दैट ऑफर इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जिसमें यू आर गेटिंग 55% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। दैट कोर्स इज अवेलेबल इन 17,790, विच इज़ अ ग्रेट ऑफर फॉर 1 year कोर्स एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 26 ऑफ Feb। तो जो भी आपके नोन हैं, आपके फ्रेंड हैं, जूनियर हैं, जो भी करना चाहते हैं, कलीग हैं, उनको बता सकते हो। कोड यूज़ करना है लोकेश अग्रवाल विदाउट एनी स्पेस। मेरा नया कोर्स आने वाला है अभी, ऑलरेडी 2 कोर्सेज चल रहे हैं और भी नए नए कोर्स आने वाले हैं।
तो जो लोग सीरियस हैं कैट 25 के लिए, दे कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन मॉडल। और ये कैट 2025 जो लोग रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक रिसेंट बैच शुरू किया 20th से। तो इफ़ यू आर रिपीटर यू कैन एक्सप्लोर दिस बैच, जिसमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस है रादर ऑन बेसिक्स, क्योंकि आपने एक बार बेसिक करे होंगे। तो इस कोर्स के थ्रू हमारा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पे है। ये एमएचसीटी के लिए है। अगर आप एमएचसीटी के स्टूडेंट हो और देख रहे हो इस वीडियो को, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दिस बैच। एंड एक इवेंट हो रहा है हमारा आरब 2025 फॉर आईआईटी जेई नीट। अगर आपके कोई भाई बहन हैं छोटे, उनको बता सकते हो इसके बारे में। और कैट के लिए भी कुछ इवेंट हैं, सरप्राइजेज हैं, रिवॉर्ड्स हैं, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। 1 मार्च को होगा इवेंट यूट्यूब लाइव पे, तो आप देख लेना एक बार 7 to 9 के बीच में। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और ऐसी मैं और भी वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपको कुछ नहीं आया समझ में या अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट पता चल जाएगा कि आपको उससे कुछ सीखने को मिला या नहीं। ठीक है, चलिए।